السلام علیکم. چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے. آج بھی ہمارے موضوع کی وہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے جو ہم نے کمیونٹی پولیسنگ پر کل ایک تعارف پیش کیا تھا. تو اب اس کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں, ہمیں دانش نے جوائن کیا تھا آن ویڈیو لنک. تو پہلے آپ ان کی گفتگو سنیے. السلام علیکم نسرین صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور ہمیں یہاں بلانے کا شکریہ. ہمیں چاہیے کہ ہم آپ کو بہترین انٹروڈکشن NSDC کے بارے میں دیں, اور وہ آج ہم کریں گے انشاءاللہ. کہ NSDC پچھلے کچھ مہینوں سے نارتھ نوز آباد پولیس اسٹیشن کے اندر ایک سیٹ اپ لے کے بیٹھا ہوا ہے, جس کی آئی ایم شیور آپ نے ویڈیو دیکھی ہے. اور وہ بہت سیلف ایکسپلینیٹوری ویڈیو ہے کہ اس ایریا میں, اس جگہ پہ اتنے بلاکس کے اندر جس جگہ پہ CCTV انسٹال کیے گئے, وہ کتنے بینیفیشل رہے ہیں اس علاقے کے لیے. جو ایریا کا کرائم کا گراف ہے وہ بہت نیچے آ چکا ہے, اور جتنے بھی لوگوں کے ان کے اپنے انٹرنل میٹرز ہیں جو ایک ایریا کے اندر ہوتے ہیں, جس میں آربیٹریشن ہے, کچھ دو لوگوں کی لڑائی ہو جائے تو اس صورتحال میں جتنی بھی پولیس کے ریلیٹڈ اس نیبرہڈ کے ایشوز ہیں وہ ادھر ریزالو کیے جاتے ہیں. اور سلولی اینڈ گریجولی وی پلان کہ ہم اس کو پورے کراچی کے پورے پولیس اسٹیشنز کے اندر اس کو ہم انٹروڈیوس کریں. تو جس میں ڈیفنس کلفٹن کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور کورنگی کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے بڑی سپیڈ سے. جگہ کچھ ہمیں مقرر کیے جا چکی ہیں, الاٹ ہو چکی ہیں. سو وی آر پلاننگ آور بیسٹ اینڈ ہوپ فلی آل دا بیسٹ کہ ہمیں اس میں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو دانش. یقیناً ہمارے ناظرین کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ لوگ کیا کام کرنے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے بھی میں نے بحیثیت سٹیزن ایک شہری کے میں نے ڈاکٹر صبیہ اخلاق کو مدعو کیا ہے کہ وہ خود چونکہ سفرر ہیں اس حکومت کی کہوں, پولیس کی کہوں, کس کی نااہلی کہوں, اس وجہ سے ان بچوں نے اگر یہ بیڑا اٹھایا ہے, اور اس میں پولیس ان کے ساتھ بہت تعاون کر رہی ہے, ہمیں یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہر وقت پولیس کو, فوج کو, رینجرز کو گالیاں دینے سے, ہر وقت حکومت کو گالیاں دینے سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. ہماری اپنی رسپانسبلٹی, ہماری اپنی ایک سیوک ڈیوٹی ہوتی ہے نا. جس ایک سویلائزیشن میں, ہم جانور جنگل میں نہیں رہتے, ہم شہروں میں رہتے ہیں, ہم بہت زیادہ آبادی والے شہروں میں بھی رہتے ہیں. تو ہمیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا, ہماری ذمہ داری جو ہے اس کو محسوس کرنا ہوگا. میں ڈاکٹر صبیہ اخلاق سے یہ پوچھوں گی, ان کا بچہ ڈاکٹر سید علی رضا عابدی آج سے 2.5 سال پہلے شہید ہو گیا اسی وجہ سے. اور جیسے دانش آپ نے بہت زبردست بات کی کہ آپ پڑوسیوں کو, ہمسایوں کو, جو بالکل وہ جو ایک زمانے میں محلہ سسٹم ہوتا تھا چھوٹے علاقوں میں, کولونائزیشن جب تھی, بیرکوں میں لوگ رہتے تھے, یا پھر لوگ اپنے GOR میں جیسے ہم بہت رہے ہیں. مسز صبیہ اخلاق کے والد بھی بہت سینئر سول سرونٹ تھے, تو یہ بھی گورنمنٹ کالونیز میں رہی ہیں. تو ان کا ایک وہ ایکسپیرینس بھی ہے کہ جو محلے داری ہوتی ہے, محلہ سسٹم جو ہے, وہ آپ کے جان, مال اور عزت کا کتنا بڑا وہ محافظ ہوتا ہے. تو یہ بچے جو کام کر رہے ہیں, اگر ہم نے انہیں اپریشیٹ نہ کیا, رضا عباس اور دانش کو اور پولیس کو اس ایریا کی, تو ہم یقیناً بہت بڑی کوتاہی کے مرتکب ہوں گے, اور یہ ناانصافی ہوگی ان کے کام کے ساتھ. انہوں نے ناظم آباد میں بہت کام کیا, اور اب ان کے آتے رہیں گے. اس پر ہم سیریز کر رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹ ایسٹ کو ہم اس میں ماڈل بنا رہے ہیں, تاکہ دوسرے ڈسٹرکٹس کے لیے پلس پورے ملک کے لیے یہ ماڈل جو ہے یہ کسی کام آ سکے, اور اللہ کرے لوگوں کو بہتر سہولتیں امن کی, آشتی کی مل سکیں. جناب عمران یعقوب صاحب ہیں DIG ایسٹ ہیں, اور شاہجہاں صاحب جو SSP ایسٹ ہیں, یہ کورنگی کے SSP ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ ہم دعوت دیں گے. کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محکمہ جاتی جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے ہیں. انشاءاللہ within a week میں IG صاحب سے بات کروں گی اور یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کو میں نے کیوں بلایا, یہ تو آپ جی میں نے سے اندازہ ہو گیا. آپ کا انٹرو بھی سنا, اس سے پہلے بھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا, اور آپ نے مجھے بلایا ہے تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر, وہ وقت 25 دسمبر 2018 کا 8:31 کا, وہ کبھی نہیں جا سکتا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر
इस पैमाने की, इस लेवल की कोई सिक्योरिटी मौजूद हो, जैसे मोहल्लों की पुलिस है, मोहल्लों की देखभाल। मैं इतना टेक्निकल इस हवाले से नहीं जानती, लेकिन इतना तो जानती हूँ कि 6 महीने सैयद अली रज़ा आब्दी की रेकी हुई है। हमें जो टाइमलाइन वीडियो मिली है, हमें जो हमारे जो CCTV फुटेजेस से पता चला है, हमें जो CDR से पता चला है, 6 महीने तक उसकी जहाँ कहाँ जाता था, कहाँ बैठता था, फैक्ट्री से लेके, उसके होटल से लेके और घर तक उसकी रेकी हुई है। और 25 दिसंबर से भी 2-3 दिन पहले हमारी गली में गाड़ियों का, मशकूक गाड़ियों का आना जाना था। और जिस वक्त उसका कत्ल हुआ है, एक मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी थी, एक गाड़ी वहाँ खड़ी थी, एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फुल लाइट डाली हुई थी ताकि वो मर्डर की जगह पर खड़े होकर निशाना लगा सके और उनका निशाना चूके नहीं। अब यहाँ आप सोच सकती हैं मैं ये बात किस तरीके से बयान कर रही हूँ। यानी ये मोहल्लादारी सिस्टम कितना जरूरी है कि अगर मोहल्ले वाले उस वक्त अलर्ट होते, आसपास के लोग तो वो ये देखते कि भाई ये एक मशकूक सी गाड़ी पिछले कई महीने से आती है, देखती है, लोग आते हैं, कोई पत्थर रख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये क्या चीज़ है सब। अच्छा, एक गाड़ी गुजर रही है, वो हमारे घर का पता पूछ रही है लोगों से, तो भाई ये सब चीज़ें तो इंसान का माथा ठंडकता है ना। बिल्कुल, ये क्या वजह है, क्यों नहीं? अगर ये सिस्टम, आपने कितनी अच्छी बात की कि हम पुलिस हुकूमत जो कुछ भी अपना काम कर रही है, लेकिन हमारे माशाल्लाह नौजवानों की आबादी हमारी दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान। जी। ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारा इतना बड़ा ख़जाना है। और अगर ये नौजवान सही डायरेक्शन में लग जाएं और मुस्बत अंदाज में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना शुरू करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम इन मुसाइब में से निकल जाएं। और आज मेरा बेटा कत्ल हुआ है, मैं नहीं चाहती कि कल कोई और अली रज़ा। और आप ये भी देखें कि ये दोनों बच्चे जो हैं, रज़ा अब्बास को आप भी जानती हैं जी, और ये दानिश, ये दोनों बच्चे माशाल्लाह दे आर आल्सो बिलियनर्स। हाँ, लेकिन ये चाहे तो ये भी अपने माँ बाप के दिए हुए पैसे से अय्याशी की जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उन्होंने लोगों का सोचा, उनकी एहसास जिम्मेदारी उनमें बढ़ी। और रज़ा तो बहुत ज्यादा, अभी ये जो कोविड-19 में हुआ, तो मैं माफ़ी के साथ कहूँगी कि हुकूमत ने वो 1200 अरब डॉलर कहाँ गए, हम उसका हिसाब नहीं मांगेंगे, ना हमारे पास इसका वक्त है। हम सिर्फ उनके लिए बद्दुआ कर सकते हैं कि खुदा इनको गारत करे। वो लोगों को कब मिला, कैसे मिला, कहाँ मिला, लेकर आए, वो कुछ नहीं पता। हमारी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड में कितना आपके ट्रक के ट्रक हमने खाने को किए, उस पे ऐसा कोई मुझे फख्र नहीं है, अफसोस है कि जिनकी ये जिम्मेदारी, जिनका ये काम था, उन्होंने क्या किया। भाई जब कोविड था तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी कि लोग भूखे न मरे, जो रोजाना रोजी कमाने वाले हैं। डॉक्टर सानिया निश्तरमी ने इस हवाले से बड़ा अच्छा काम किया। मैंने तो एक दिन देखा, वो शटल कॉक बुर्का पहनकर रेड करने पहुंच भी गई कि हमने जो राशन भिजवाया है वो कहाँ गया, वो देखें, चेक करें। तो इसी तरह का चेक सिस्टम अगर मौजूद हो, चेक एंड बैलेंस का, तो ये कोताहियाँ और करप्शन कम हो सकती है। लेकिन मैं रज़ा अब्बास का आपको बता रही थी कि उसने इतना राशन तकसीम किया है अपने माँ बाप के पैसों से, रिश्तेदारों से उसने पैसे जमा किए, अपने दोस्त अहबाब से जमा किए। तो यही काम अगर हर बच्चा अपनी अपनी वसातत, अपने रिसोर्सेज के अंदर रह के करता, लोगों ने किया, माफ़ कीजिएगा, लोगों ने किया। एक तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, खुराक के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से नौजवान बाहर निकलें, काम करें, तो कोई वजह नहीं है कि हम जो है इस क्राइसिस से ना निकलें। और एक और बात, आखिरी बात ये कि अखलाकी तरबियत हमारे माशरे में ऊपर से लेकर नीचे तक हर एक की बहुत ज़रूरत है। कौन करेगा वो? मैं करूँगी। आप करेंगी बहैसियत माँ और बहैसियत सोशल वर्कर, लेकिन क्या सारी माएँ ये काम कर रही हैं? एक और बात, और बहैसियत एक अदना तालिब इल्म कुरान हकीम। यस, आप तो माशाल्लाह, आपने तो कुरान, आपके तो स्कॉलर हैं, अदना तालिब इल्म। और अफसोस की बात है कि इस माशरे में कुरानी तालीमात की कहीं झलक भी नहीं नजर आती। तो जितना जब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो मुझे अफसोस ही होता है, मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी ज़ाया कर दी, क्योंकि मैंने क्यों नहीं ये तालीमात। हम कुरान की तालीम उसे समझ रहे हैं, वो जो मदरसों में हो रही है, और वो मदरसों की अब वीडियो शेयर करनी शुरू की हैं लोगों ने कि बच्चों की पिटाई के अलावा दूसरा बेहुदा काम जो है उसके अलावा ये मदरसों में हो क्या रहा है। और इन मदरसों के नाम पे बिलियंस ऑफ डॉलर इमदाद, खराबी तो वहीं से है कि वहाँ से बिलियन ऑफ डॉलर की इमदाद आ रही है। मदरसों में क्या हो रहा है, उनको कत्ल गारत की ट्रेनिंग दी जाती है, टेररिज्म सिखाया जाता है, और मजहबी तासुब फैलाने में बड़ा गंदा रोल प्ले किया है। जाओ जन्नत में हो रहे तुम्हारी मदद तरफ में खड़ी है। माशरा बहुत नसरीन, ये जो आपने शुरू किया है ना, माशरे के फैब्रिक को टच करना,
माफ़ कीजिएगा, इतना ख़तरनाक करंट उस फैब्रिक में मौजूद है। अल्लाह करे करंट लग जाए। तो जब मैं तो उसके करीब आती हूँ तो मैं तो बहुत मुझे तकलीफ जिनको ये करंट लगने से उनके अंदर शऊर जाग गया तो मैं समझूंगी हमारा काम हो गया, और जो ये करंट लगने से मर गए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लग रहा है, देखिए हम लोग तो कब्रिस्तानों में अजान है ही, दे हम रहे तो हैं, कब्र, हमारे कब्रों में पैर लटके हुए हैं। अगर हम कब्रिस्तान में अजान दे रहे हैं। सारी जिंदगी तो फुर्सत नहीं मिली नौकरी से, घर से, अब हमने सोचा ये हमारे जो बोनस की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, इसको हम बोनस को हम ऐशो आराम करके क्यों गुजारें, काम करें लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच मिसेस सबिया इखलाक। और इंशाल्लाह इस हवाले से, कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से आप लोगों को जगाएं, आपसे बात होती रहे। जरूर, खुदा हाफिज। नाज़रीन, हम आपके साथ इन टच रहेंगे इंशाल्लाह। इसी कम्युनिटी पुलिसिंग पर मैं पूरी सीरीज बना रही हूँ। फेडरल गवर्नमेंट से भी इसमें लोग आएंगे, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के करता धरता हैं उनको भी बुलाया है, जो लोग प्रोविंस के हैं, चूँकि किसी ना किसी प्रोविंस को, किसी ना किसी शहर को तो इसमें मॉडल बनना है ना। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आईजी साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगी, मुश्ताक महर साहब का भी, और मैं इमरान याकूब साहब का भी, और एसएसपी शाहजहाँ साहब का भी, कि वो इन बच्चों को फैसिलिटेट करने में इनकी मदद कर रहे हैं। और हम इंशाल्लाह अपने शहर के इस डिस्ट्रिक्ट को एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे कम्युनिटी पुलिसिंग के हवाले से। हमारा और आपका साथ रहेगा। खुदा हाफिज।